പാലത്തിനുള്ളിൽ
कैसे आप लोग? सब बढ़िया। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? पढ़ाई किसके लिए? स्पेशलाइजेशन है? ये डिस्कस तो नहीं कर रहा, ऐसे ही बोलो। मैं बोल सकता हूँ ऐसे भी। क्या है सर क्या? Okay, first of all, thank you very much for inviting me to this university. Thanks to your management and Dr. NPC. And also Engineers Institute, यहाँ का है local for inviting us. Yesterday we had one session for Mr. Prabodh Mishra. Yes, sir. How was that? Very nice. आपको complex दे रहा हूँ सर. This is a brief about me. From 36 years of experience in the industry. Presently working as CWB, as one of you has already explained about me. Before GR, I started my career with NLP 68.7 commercial. I was with them around for 16 years. Then I was with underground metro with a KSH in Delhi. The first department started in Delhi. Then Simplex, I was there for around 16 and a half years. Then before GR, I was in the BIA. And in all this company, my profile was very, very different. I started as a site engineer. It's basically a construction company. Then there was a journey. But all our functions of the project management, whatever things are needed. Also, I handled the legal department of the company. Today, I'm handling basically the strategy of the company and also responsible for the maintenance of the contract management. क्योंकि यहाँ पे आया हमने MBA वालों के सामने क्वेश्चंस हो सकते हैं I don't like to bring that. It's just a little bit different. It's normally people think it's not important for my MBA. I have also engaged with various national associations and with many universities. With various universities across India, I am on the board of the study member or maybe the corporate advisor or study advisor. This is based on my interest. My area of experts are basically project management system, then contract and claim management, business strategy, catering, project coordination, project execution, and training and development. Education wise, I did my diploma. I started my career with diploma in civil engineering. I myself with a story in the construction industry. I started my career with the smallest education background, 88. Then I upgraded myself with the various things. And also I completed my PhD in the contract management. I also have many certifications. Also awarded by various organizations in my whole career. And also I have certain publications. My two books are there in the market. My Basics of Construction Management is the most sellable book in the university and in the professional line. Then there is this Basics of Construction Management. Basically, I am the author and also the publisher. And this strategy to implement the construction area is available in the Kindle, Amazon Kindle. So people ask me some e-books निकालो, हमको hard copy में पढ़ने का दिक्कत होती है. But what I am finding is hard copy is more sellable than the e-book. Then also I have around 15 research papers with copyright action. One of my patent is under approval. So this is a small journey of mine. आगे बढ़ो. So पीछे जाता हूँ. Today I will start talking something on the management skills for career success. Something very different. Normally MBS में जो लोग पढ़ाने के लिए आते हैं तो एक दिमाग में सब कहना चाहिए कि हमको वो पढ़ाना है और 99% things to get in the books. Except for Prabodh Mishra, we are basically known since 2004. So around 20-21 years. Mostly we travel together. तो हमको पता रहता है कि आपको क्या बोलेगा और मैं क्या बोलूँगा. तो मॉर्निंग क्या होगा asking him कि what you have not covered that you know. तो duplication ना हो, time saving हो जाए. तो वैसे ही आप लोगों ने मुझे उससे आधा घंटा कम दिया है. उनका 2 घंटे का सेशन था, मेरा 1.5 घंटे का सेशन में 5 मिनट उनके इसमें वेस्ट कर दिए. मैं ट्राई कर लिया. मैं यहाँ पे वो करने के लिए नहीं हूँ तो मैं जानता हूँ. मैं यहाँ पे आ गया हूँ वो बताने के लिए जो आप नहीं जानते हो. अगर किसी प्रोसेस में आपका
by 2 MBA students. So basically we are proposed this way also running a skill enhancement academy. अगर basically to assist youth across the country in reskilling and upskilling in order to improve their employment prospects in the engineering and management domains. So basically we provide the services, we do the assessment, evaluate skill test, we do competency mapping, we do gap analysis, we do the industry-led trainings, strategic development, corporate mentoring. We also do the strategy, customized solutions, counseling and guidance. And basically we work on the 5D model. We diagnose. जैसे आप डॉक्टर के पास दवाई है तो बहुत हेल्थ केयर कुछ होता है पहले क्या करता है डायग्नोस करता है क्या देना है और क्या रिक्वायरमेंट है then we design, we develop, we deliver and also we implement. So yesterday we signed the MOU. They are for your university for signing. We gave them for you we gave them the offer of corporate mentoring and for engineering students we gave the offer of employability skill test. So the MOU is signed, proposal is under discussion, commercials are being discussed. Hopefully we will be starting it soon. You all are parallel students. Yes, sir. You may not get benefit of this because you are actually passing out somewhere in the high year. First year First year भी है. ये फर्स्ट ईयर दिस इज सेकंड ईयर. अच्छा ऐसे बैठे हो क्या? यस सर. शर्ट का रंग चेंज हो जाता है सेकंड ईयर में. हाँ? फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर में यही शर्ट रहेगी. यस सर. अच्छा. तो नाइस आप ही है ना? बट इसको धोना बहुत पड़ता होगा, इसको तो धोना पड़ेगा. क्या? बराबर है ना? मेरे भी बच्चों ने डीपीएस से पढ़ा था पूरे 12 6 से लेकर 12 तक वाइट करके कलर की कपड़े पहनते थे तो रोज धोना पड़ता था क्योंकि वो डेस्क पे बैठते तो नहीं है बच्चे जमीन में भी बैठते हैं खेलते नहीं है और इतनी गर्मी हो जाती थी कि लगा के थोड़ा साफ नहीं होती थी. So this is just we will hope we will get soon. तो फर्स्ट ईयर में इतने बच्चे हो इतने क्यों आए थे बाकी नहीं किया. अरे जोर से बोलो ना. ऐसा तो नहीं कि आपको बोला गया कि तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम बैठना वहाँ पे बड़ा इंप्रेशन आएगा बाहर वालों को कि हमारे बच्चे ऐसे हैं. एक्चुअली सर जिनका सेशन हुआ था नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताने को मेरी बात नहीं कर रहा हूँ. आपको यूनिवर्सिटीज को एक चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए. यूनिवर्सिटी जब इस तरीके की चीजें करती है तो यूनिवर्सिटी का काफी पैसे खर्च होते हैं और एक काफी बड़ा एक सिस्टम उसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है. अटेंड करना चाहिए. सबका होता है. मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग करके मास्टर करके यूएस में जॉब कर रहा है. मेरी डॉटर की लॉ कंप्लीट हो रही है. शी इज आल्सो गोइंग यूएस फॉर द लेवल. मेरे बच्चों को किसी होता पापा इंडस्ट्री वाला भी आया था बताने के लिए बट आज रियलाइज करते हैं हर घर की कहानी है. सभी के बच्चे ऐसे करते हैं. मेरे बच्चों ने ऐसे ही किया लेकिन बंद करो फायदा होता है नुकसान नहीं होता. कुछ तो सीखोगे ना. तो गलत तो बताएगा नहीं रहेगा रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो अच्छे. तो सबसे पहले जाते हैं ये न्यूज स्टैंड. सॉरी कुछ हिंदी में सब यूज करूँगा थोड़े से दिल को लगेंगे और दिल को लगाने के लिए बोल रहा हूँ. मेरी औकात क्या है. मेरी मतलब मेरी कहाँ पे हूँ मैं है ना दुनिया में क्या हो रहा है. थोड़ा सा इसकी छोटी हो गई है. नीचे में ईयर्स लिखे हुए हैं ऊपर में कुछ परसेंटेज लिखी हुई है. एम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज. एक स्किल इंडिया की रिपोर्ट आती है एक लोग नहीं है स्किल इंडिया इन्होंने 2014 में अपनी रिपोर्ट रैंकिंग बैठ दी है हमारे पास. दुनिया में पीछे दिया था. फोटो भी खींच सकते हो. आई डोंट माइंड टेकिंग द फोटो. आजकल आप लोग सब डिजिटल युग में हो लिखने का हाथ में दर्द होता है बट स्किल इंडिया जो लिखना पड़ेगा मैंने लिखा नहीं है. इंडिया से छोटा है. हेलो एम्प्लॉयबिलिटी किस तरीके से बढ़
क्या है उसके साथ में आप 2023 की और 24 की दोनों की रिपोर्ट को पढ़ना। रीजन क्या है कि 2023 की रिपोर्ट में थॉट प्रोसेस डिफरेंट था, अब 2024 में थॉट प्रोसेस एकदम चेंज हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री में बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट चेंज कर रही है, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो मतलब करें क्या। मैं तो ये पढ़ रहा था सोच करके, लेकिन सडनली इंडस्ट्री कुछ सोचने लगी तो समझ में आता है कि मेरे को अपग्रेड होने की जरूरत है। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों को इन फैकल्टीज को भी अपग्रेड होने की जरूरत है। फैकल्टी भी काइंडली को पढ़े, तो उन्होंने डोमेन में सारा कवर किया हुआ है, मेल फीमेल को भी कवर किया हुआ है, स्टेट को भी कवर किया हुआ है। कौन से स्टेट को करते कहते हैं, ज़्यादा मोटी रिपोर्ट नहीं है, गूगल में जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाते ही हो 10 मिनट इसमें लगा देना, पैसे कुछ एक्स्ट्रा खर्च होंगे नहीं, क्योंकि डाटा तो तुम लोगों ने परचेज किया है मोबाइल में, ये देख लेना। कहते हैं ये डोमेन वाइज है, तो इसको अगर आप 2014 से 2024 आप इस लाइन को कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आप देखोगे 41%, 44%, 42, 39, 36, सडनली 54%, 46, 55। इंटरेस्टिंगली 2024 में एमबीए में बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी सडनली इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या है, अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं एमबीए में, यूनिवर्सिटीज कुछ अच्छा कर रही है, फैकल्टीज कुछ अलग हटके कर रहे हैं, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। थैंक्स फॉर अवर फैकल्टी, थैंक्स फॉर अवर एजुकेशन सिस्टम। क्लियरिंग है कंप्यूटर साइंस के लिए ये टेंशन वाली चीज है कि सडनली एमसीए क्यों कर रहा है। आपको क्या है, यहाँ से थॉट प्रोसेस समझ में आता है, कहीं हम लोग डिजिटल की तरफ जा रहे हैं क्या, सडनली एमसीए के लोग क्यों ट्रैवल हो गए। ऐसा तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ, पढ़ाया तो वही जा रहा था उनको। तो ऐसा नहीं है कि मेरे सिलेबस में भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। कल आप लोगों में से किसी ने इंडस्ट्री 4.0 के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा था? मैं वीडियो देख रहा था, मैं बना रहा था लेकिन प्रपोज कर रहा था, यहाँ पे खड़े होकर घूमने की सजा नहीं मेरे को है। तो दिस विल बी योर आइडिया, ठीक है। तो खुश होने की जरूरत नहीं है, आप उस 71% में हो गया आप नहीं हो सकते, तो देखो उस पेपर किस रिपोर्ट में क्या है, ठीक है। आगे बढ़ो। रिक्वायरमेंट्स बहुत चेंज हो गई है, जैसे चेंज रिक्वायरमेंट डिमांड। आप ये क्वेश्चन से चालू करते हैं, ठीक है। ये स्लाइड थोड़ी नीचे थी, आप देखते हैं ऊपर है। इंडस्ट्री 5.0 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये शब्द भी ना बड़े नए नए हैं, इंडस्ट्री 5.0, इंडस्ट्री 4.0। मैं भी इंडस्ट्री पे 37 साल से हूँ, ये टर्म सब अभी नई नई आनी शुरू हुई है ना। नाउ दिस इज 3 साल कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे ये वाली जनरेशन, स्पेशली आपकी वाली जनरेशन, उस शिफ्ट के बीच में बैठी हुई है जब आप 4 से 5 की तरफ को ट्रैवल कर रहे हो। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। और जब क्या होता है, जब चेंजेस प्लेस करते हैं तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता होता कि मुझे चाहिए क्या। एकेडमिक को तो छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता होगा कि मुझे चाहिए क्या। सडनली नए नए शब्द याद हो जाते हैं। जैसे आर्किटेक्ट में अगर आप देखिएगा, जब बायोडाटा डाटा एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लिखूंगा तो जो मेरा सीवी ढूंढ रहा है उसमें naukri.com में कंट्रोल एल दबा करके, तो मेरे सीवी को लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको वो सब चीजें ढूंढनी है। और मजे की बात यह है, सॉरी टू से 90% इंटरव्यूअर को भी नहीं पता कि मेरे को डाटा एनालिसिस में पूछना क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुझे पूछना क्या है। तो इसमें जो बच्चा थोड़ा सा क्लैरिटी लेके गया है वो जीत जाएगा।
से ये प्रस्ताव है क्योंकि ट्रांजिशन फेज में बैठे हैं सारे। सबसे पहले 1780 में मैकेनाइजेशन, उससे पहले क्या था, हाथ से काम करते थे, मशीन का काम करते थे। सडनली यूज ऑफ वाटर एंड स्टीम मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। तो ये सब करीब 100 साल तक। क्योंकि 1870 में इलेक्ट्रिसिटी आई, तो क्या हुआ, जो वाटर और स्टीम से जो मशीनें चलती थी वो मशीनें चलने लगी इलेक्ट्रिसिटी से। और एक चीज इसमें आई, मास प्रोडक्शन यूजिंग असेंबली लाइन। असेंबली लाइन क्या होता है? कभी वो तार बनाने की फैक्ट्री में गए हो, देखिए लाइन से चीजें बनती जाती हैं। एक तरफ में जो है वो हो सकता है कि उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा, फिर एक वो तो पेंटिंग पूरी होगी, तो असेंबली लाइन का काम होता है, जिसमें लाइन से चीजें बनती रहती हैं। वैसे जो मास प्रोडक्शन होता है क्वालिटी कंट्रोल बेटर होता है। इसी टाइप में क्वालिटी शब्द का भी ख्याल होता है। तो 1970 में इंडस्ट्री 3.0 ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। यहाँ पे देखो 100 साल का गैप है। 1780 1870 और हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरा इंग्लिश में बोलना और पूरा इंग्लिश में बोलना तो ठीक है, ऐसा भी ठीक है, वैसा भी ठीक है। ऑटोमेशन आया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। देन 3.5 1980 में 10 साल के बाद ग्लोबलाइजेशन। तब क्या शुरू हुआ, एडवांस एनहांस्ड बाय द ऑफशोरिंग ऑफ प्रोडक्शन। ऑफशोरिंग ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जोर से बोलो जय माता दी। क्या हुआ, आपको समझ में आया? 22 वर्ष का हुआ, उससे कोशिश दे रहे होंगे, पहले से कोशिश दे रहे होंगे, तो चीजें सस्ती होनी शुरू हुई, अच्छी होनी शुरू हुई। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक दौर है 1980 में। फिर 2010 उसको टुडे बोल सकते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात आई। अब यहाँ पे सडनली बहुत भयंकर फील्ड है, बेस्ड ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, फैक्ट्री से स्मार्ट होने लगी, डाटा एनालिसिस की बात आने लगी। एक नया पीरियड है, हम सबके लिए एक नया पीरियड है। चले जा रहे थे हम लोग तो वैल्यू 1980 ज्यादा से ज्यादा किसको सीख रहे थे हम लोग, ऑटोमेशन में थे, ये हम ग्लोबलाइजेशन में डाउन में थे, ये एक दौर आया। अब बेसिकली चाहे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, चाहे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, चाहे मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, इन बेसिक चीजों को मुझे अपने सिस्टम के अंदर में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फीचर आ रहा है 5.0 पर्सनलाइजेशन, जिसमें मशीन और ह्यूमन का बीच में कोलैबोरेशन, एक पर्सनल टच, कस्टमाइजेशन, कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से चीजें बनेंगी, ठीक है। 3 पिलर्स के ऊपर पर खड़ा है ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। व्हाट माय कस्टमर इज आस्किंग फॉर, मैं वो चीज उसको दूंगा। प्रायोरिटाइजिंग सस्टेनेबिलिटी, है ना, वेस्ट को कम करना है, अब अर्थ सेव द अर्थ। थर्ड इज क्यों आया, कोविड की वजह से, हाउ टू बाउंस बैक। खराब से खराब स्थिति में मैं अपने बिजनेस को कैसे बनाऊं कि मैं दोबारा से खड़ा हो जाऊं बिजनेस को। तो ये फेस अभी चल रहा है 5.0। बहुत ज्यादा क्लैरिटी लोगों को नहीं है, बट यू विल फाइंड कि मैनी पीपल विल बी कमिंग फ्रॉम दिस एरिया। आपको पता होना चाहिए कि 4.0 क्या है और 5.0 क्या है, ठीक है। बहुत लंबा सब्जेक्ट है, अगर इसमें ही बोल रहा हूँ तो 1.5 घंटे भी कम है। एक इंटरेस्ट क्रिएट करके जा रहा हूँ, आप गूगल में अगर आप डालोगे 4.0 5.0 हाई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आप सही लिंक पे जाओगे तो, ठीक है। एक थोड़ा सा काम कर लेना, खुद ही एक सेशन बना करके खुद ही आपको बताना, फैकल्टी को बोलना कि आप फैकल्टी ने एक में करेक्शंस की आपको बता रहे हो, नहीं बता रहे हो, दैट इज द बेस्ट लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, है ना। मैं थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ आपको समझ आ?
बेसिकली पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं, जैसे मैंने कुछ बात नहीं किया 4.0 5.0 में क्या है, 4.0 का बेसिकली ह्यूमन और मशीन, जैसे मैंने बोला 5.0 में देख के कोलैबोरेशन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन। देन साइबर फिजिकल, देन देयर इज अ डिफरेंट, पहले क्या था कि क्लाउड में उसको हो रहा है सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करके चल रहा है ना, क्योंकि ह्यूमन भी साथ में है और मशीन भी साथ में चल रही है। टारगेट जो इंडिविजुअल पर्सन है, पहले क्या था कि मैंने जो बना दिया वही है, अभी क्या है कि मैं इंडिविजुअल लोगों के नीड के हिसाब से चीजों को क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि कल हमने आपकी यूनिवर्सिटी के साथ में एमओयू साइन किया, आज से अगर 5 साल पहले पूछो तो हमारा भी आप लोगों के साथ में बताने का नजरिया डिफरेंट होता था कि यार मैंने ये बनाया, मैं ये पढ़ाऊंगा। अब हम ऐसा नहीं करते, हम नीड के हिसाब से चलते हैं, एरिया के हिसाब से चलते हैं कि गोरखपुर है तो गोरखपुर के आसपास के बच्चों को किस तरीके की इंडस्ट्री में लोग लेके जाएंगे, उस तरीके की चीज़ों को कंसंट्रेट किया जाएगा, या बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, या इंडस्ट्री 5.0 की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस बेस्ड ऑन नहीं कस्टमर रिक्वायरमेंट मिठाई की दुकान में जाते हो है ना, यहाँ पे मिठाई में चीनी कैसे रहती है, ज़्यादा नहीं कम ज़्यादा रहती है। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, नीचे रहने वाले अच्छी लगती है हाँ? तो कई ऐसी जगहों पे जाओगी जहाँ पे चीनी कम रहती है, बना नहीं आएगा, खाने को नहीं आएगा हाँ। तो जब जगह चेंज करके जाओगे तो देखोगे कि इन चीज़ों को फर्क पड़ेगा। अब दुकान में आपको कैसे करना है कि ऐसी मिठाई बनाएगी जो इनकी भी पसंद किया जाए, इनकी भी पसंद किया जाए। वो केक में पॉसिबल है, जब आप ऑर्डर करके बता दो कि भैया मेरे वाले केक में चीनी कम डालना, और वो जो आप गुलाबी रंग का जो वो डालते हो ना क्या जैम, वो नहीं चलेगा, वो अच्छा नहीं लगता है खाने में है ना। कोई बोलेगा कि मेरे को तो उसमें क्या खाते हो आजकल, चॉकलेट कस्टमर के नीड के हिसाब से और डिस्कशन करेंगे जब हम क्वालिटी में जाएंगे। डाटा एनालिटिकल था, रिस्पॉन्सिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आप कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हो, IoT कनेक्टेड डिवाइसेस में ग्रेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। तो एज आई टोल्ड यू क्या करते हैं इसके अंदर खुद बात हो, ये अपने 1 घंटे का सेशन हो जाएगा। जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि कोई कंपनी जब आपको सिलेक्ट करने के लिए आए, they may touch about the industry 5.0 just to see whether you are aware about it or not. कोई भी आपसे ये एक्सपर्ट नहीं करेगा कि आप इंडस्ट्री 5.0 पूरा बताना शुरू कर दो, क्योंकि जो पूछ रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब विशेषज्ञ स्किल्स क्या है इंडस्ट्री 5.0 के लिए? सबसे ऊपर में क्या है, उसके नीचे में क्या है, टेक्निकल स्किल्स के नीचे में क्या है। अब आप MBA के स्टूडेंट हो, आपसे तो उम्मीद नहीं करता कि आप C++, जावा और ये सब सीखोगे, ठीक है। तो ये किसके ऊपर में एप्लीकेबल होगा, जिनका MCA हो गए या BTech कंप्यूटर साइंस वाले लोग हो गए, ये टेक्निकल स्किल्स के ऊपर रिक्वायरमेंट है। डाटा लिटरेसी के नीचे क्या लिखा हुआ है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है, एग्जांपल बताओ। Like an HR has to deal with a lot of data. अच्छा, कोई एक्स्ट्रा माइक भी है क्या हमारे पास? दो बोलो। So like an HR has to deal with a lot of data of the employees, so there it can help them. और बोलने के बाद बहुत अच्छी है। रिक्रूटमेंट के टाइम पे हायरिंग HR के अलावा Also in marketing also when we have to deal with a lot of things, when we have to deal with a lot of volume of equipments or things in marketing, there also. आप बैठो ना मैम। यस दूसरा एक प्रॉब्लम और समझो, जब आप डाटा लेके आते हो ना, तो अगर आप रॉ डाटा दिखाओगे ना तो प्रेजेंटेबल चाहिए, वो समझ में नहीं आएगा। और जब आप अपने सीनियर्स के पास में जाओगे, अगर मेरे पास में मेरे कोई जूनियर आता है, अगर वो 10 मिनट के अंदर में मुझे नहीं समझा पाता ना, तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मैं बोलता ठीक हो गया, तू जा, मैं खुद करूँगा। कैसे करोगे उसको, डाटा का एनालिसिस को, क्या टूल्स है आपके पास में? यहाँ थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा आपके साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल, ओके, अभी पहले एक्सेल को लिखते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस 3 मिनट्स ऑन एक्सेल। एक्सेल में क्या है?
सही बोला है, गलत नहीं बोला। एक्सेल में क्या है? फार्मूला, ओके, चार्ट्स, ग्राफ, ठीक है। कौन से फार्मूले यूज कर सकता हूँ मैं एक्सेल पे क्या चीज बनाने के लिए? जैसे मैम ने तो थोड़ा सा जो बोला फाइनेंशियल डाटा को लेकर के ज्यादा टच किया, सिंपल वाला ले लेते हैं, चार डाटा का ले लेते हैं। किस तरीके के हम फार्मूले यूज करके हम क्या टेबल में निकालेंगे? So we can use formulas. कौन सा फार्मूला यूज करोगे? एक्सेल में कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? पहले विंडो को पहले ये बताओ, क्योंकि विंडो में क्या है कि वर्जन के हिसाब से ऊपर का रिबन चेंज होता है। 2007 बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। 2014 बहुत पुराना है, बाकी तो 2020 भी पुराना है। एक्सेल के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं एक्सेल को यूज कर रहा हूँ 1994 से, और हर साल सोचता हूँ कि मैं एक्सेल में मास्टर हो गया, और वो जो है उसका टेबल चेंज हो जाता है। उस पर डाटा एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, जो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा रिसर्च में यूज करते हो गए, SPSS, EViews जो हम यूज करते थे, वो सारी चीजें एक्सेल के अंदर में आ गई। ओनली डिफरेंस इज EViews और SPSS जो बिल्कुल डाटा देता है उस पर थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ एरर रहती है, बट उससे आपकी कोई भी चीज का प्रोजेक्शन चेंज नहीं होता है या एनालिसिस चेंज नहीं होता है। अब बहुत बड़े डाटा को मुझे बनाना है छोटा करके, तो अगर मुझे फार्मूले नहीं आते हैं लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि ये ऐसे करना है, तो उसके लिए मैं किसकी मदद लूंगा? मेरी फंक्शन से मदद में कभी नहीं पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि ये फंक्शन का रिजल्ट ये आएगा। अगर मुझे चार्ट ग्राफ नहीं बनाना है, अभी मैम मैं कैलकुलेशन फॉर्म में बैठा हूँ, जैसे मैम ने बोला कि बहुत सारा फाइनेंशियल डाटा आ रहा है, पहले मुझे उसे एनालाइज करना है। चैट जीपीटी में 3.5 में अवेलेबल है, दिमाग मत लगाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, उसमें टाइप करो कि ये मेरा डाटा है, ये मेरे को ऐसा करना है, मुझे एक्सेल के फार्मूलेज बता दो, वो आपको फार्मूलेज बताएगा। ठीक है? फेसबुक सब यूज करते हो? बिल्कुल ऐसे यस सर नहीं होता, यस सर ऐसे होता है। इंस्टाग्राम यूज करते हो? आपको पता है आपका मोबाइल की एक बहुत खास बात है, आपका मोबाइल बंद रहता है तब भी वो सब सुनता है आपको, है ना? आज आप एक काम करो, सारे के सारे बात करो कि हम क्या गोवा चलेंगे, गोवा चलेंगे, आप देखना रात को आपको ना गोवा ही दिखेगा, है ना? होता है ना? मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, सुनता भी नहीं हूँ। अब आप एक्सेल की बात करने शुरू करो, कसम से कह रहा हूँ, आपको फेसबुक में आपको एक्सेल के सारे आपको वीडियोस दिखाएगा, अगर फेसबुक यूज करते हो तो। इंस्टा में कम यूज करता हूँ, सेम होता है। तो आपको वहाँ पे भी मिलते हैं। अगर मैं चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में बस एक ही प्रॉब्लम है कि चैट जीपीटी आपको कोई टेक्स्ट को अच्छा कर देगा, आपको कर देगा, लेकिन अगर आपको कोई डाटा ढूंढना है तो जेमिनी है, क्योंकि वो गूगल का अपना है, जेमिनी AI, वो आपको क्या है और थोड़ी सी चीजें एडवांस बताता है। ठीक है? तो पहले मेरा एक्सेल जो है मेन है एक चीज जिसके अंदर में आप कुछ चीजों को आप कर सकते हो। ठीक है? और उसके आगे सामने कुछ चीजें और ऐड करनी चाहिए, मैं रिपीट जानने नहीं किया क्योंकि सब नेक्स्ट लेवल पे चले गए थे। हाँ, एक तो मेरे चार्ट बन गए एक्सेल में, और भी कोई तरीका है क्या चार्ट वगैरह बनाने का, मेरे डाटा को हैंडल करने का? एक्सेल में एक और नया चीज है, आज से अगर मैं बात करूँ 4 या 5 साल पहले पिवोट टेबल मेरे को खुद से क्रिएट करनी पड़ती थी। अभी नए वर्जन में क्या है, पिवोट टेबल को खुद क्रिएट कर देता है। तो डाटा को देख करके खुद क्रिएट कर देता है। एक्सेल में ये चीज और आ गई, अगर लेटेस्ट यूजर बोलूँ तो मैं 2018 में इसके आसपास का जो अपडेट आया था, राइट साइड में सजेशंस आने लगते हैं कि आप अपने डाटा को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो पिवोट टेबल इज आल्सो ए वेरी गुड टूल टू प्रेजेंट योर डाटा इन ए समराइज्ड वे। ठीक है? अनदर थिंग इज पावर BI, बेस्ट टूल टू मैनेज योर बिग डाटा
और टू आंसर एनी क्वेश्चन जब आप प्रेजेंट करते हो, सर हो सकता है कि सडनली पूछने लगे कि अच्छा ये बताओ तुम एचआर का डाटा लेके आए थे, उसमें कितने जन लोग कानपुर के रहने वाले हैं। अब एक्सेल में आपने वो सिटी में फिल्टर लगाएंगे, आप पगला जाओगे, पावर में आपको मदद करेगा। सडनली पूछ लिया कि इसमें से लेडीज कितनी थी, इसमें से मेल कितने थे, अच्छा ये बताओ ना 20 साल वाले कितने हैं, 25 साल वाले कितने हैं। प्रोवाइडेड आपने डाटा उस तरीके से कैप्चर किया हुआ है, पावर बीआई आपको 2 मिनट में आंसर देगा। अच्छा पावर बीआई में एक बहुत अच्छी और है, अगर आपने पावर बीआई बहुत अच्छे से बनाया है तो उसमें क्वेश्चन आंसर भी आप डाल सकते हो। आप नहीं अवेलेबल हो, सर को नहीं समझ पा रहा, सर ने क्वेश्चन डाला उसके अंदर में, वो उसके आंसर बना करके वो दिखा भी देगा आपको। टेबलू इसी तरीके का एक और है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। एबिलिटी टू वर्क विद द लास्ट वॉल्यूम एंड प्रोफिशिएंसी इन डिजिटल कोलैबोरेशन टूल। पहले वाला मैं एमबीए के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन नीचे के जो 2 लिखे हुए हैं डिजिटल डाटा लिटरेसी एंड डिजिटल स्किल्स, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप मार्केट में जाओगे, कोई आप जैसे कोई ऑपरेशन में होगा, कोई हो सकता है सेल्स की तरफ में सोच रहा हो, इतना लार्ज डाटा लेके आओगे, उस डाटा को आप हैंडल कैसे करोगे। तो आप एक छोटी सी एक रिपोर्ट बना सकते हो, अभी आपने जो भी प्रोजेक्ट किया हो, जब आपका कोई इंटरव्यू यहाँ पे आएगा आप उसको दिखा सकते हो कि मैंने टूल्स को यूज करके मैंने इस तरीके से समराइज किया अपने डाटा को। तो इट कैन बी वेरी प्रेजेंटेबल, इट विल गिव यू थॉट प्रोसेस कि हाँ बच्चे को इस डायरेक्शन में चीजें पता है। ठीक है, इंटर्नशिप कहाँ कर रहे थे, कोई एक बता दो क्या कर रहे थे, मेरे को कहाँ कर रहे थे, गलत सवाल पूछ गया। इंटर्नशिप में मैंने क्या किया, मार्केटिंग सर्वे की, मार्केटिंग सर्वे किया। तो क्या था उसमें, क्या चीज़ का सर्वे कर रहे थे, तो पेपर में कस्टमर फीडबैक लेना था कि बहुत ज़्यादा लीडर्स कितने हैं लोगों को मार्केटिंग किया, तो बाद में क्या किया उस सर्वे डाटा का, उनको रिकॉर्ड करके दिया था, क्या करके दिया था, एनालिसिस करके दिया था। क्या चीज़, क्या एनालिसिस किया, एनालिसिस ये था कि हमारा गोरखपुर रीजन में कौन सा पेपर ज़्यादा बिकता है, और ज़्यादा की जाएंगे ज़्यादा की रास्ते सारा जो पेपर उसमें कम्प्लीटेड कौन है हमारा वो ज़्यादा, कौन सी एज ग्रुप को लोग ज़्यादा पढ़ते हैं वो भी कवर किया था। यस सर, कौन डिजिटल मीडिया पर पढ़ते तो ये जब एनालिसिस किया तो कौन से प्लेटफॉर्म पे किया, सर सर्वे किए थे जाके, नहीं वो एनालिसिस किया तो क्या चीज़ में किया, मतलब एक्सेल में क्या, इससे डाटा कलेक्ट एक्सेल में किया ना, फिट करके उनको देना था। अब इसी को पावर बीआई में करके देखो। बट पावर बीआई का क्या है कि आपको फ्री वाला जो है बहुत कम दिन के लिए मिलता है, तो कोई क्रैक वर्जन देखने को मिलता है, तो 30 डेज का ही है ट्रायल। ये आपकी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको लाइसेंस है तो आप उसको भी यूज़ करके देखो एक बार में। तो यू कैन मेक एंड यू कैन गिव इट टू द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो एटलीस्ट दे कैन फॉलो योर थिंग्स, यहाँ भी इस तरीके से भी चीज़ें बन सकती हैं। सॉफ्ट स्किल आई थिंक परमोनिशा जी ने कल सारी कवर कर दी, उन्होंने मेरे को नहीं बोला है ना। इनमें से कोई ऐसी चीज़ जो मिसाइल ने कवर नहीं की, या ऐसी कोई चीज़ जो उन्होंने कवर की नहीं, मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिटी की आवश्यकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होगा, नहीं स्टेबिलिटी तो बात की बात नहीं। बेसिकली अपन ने क्या बात कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हम कस्टमर की नीड के हिसाब से हम बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को खुद नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या। तो बेसिकली दैट इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि व्हाट टाइप कस्टमर इज लुकिंग फॉर। जाते होंगे ना बैठा कोई साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए, तो आप देखना एक आदमी गद्दी में बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, बाकी लड़के दिखा रहे होते हैं कि वहां से वहां रहो, बहन की जो छोटे बॉर्डर वाली साड़ी दिखा हुई, वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला बंदा बैठा हुआ है, वो वहां से देख रहा है, चेहरे को देख कर समझ रहा है ना। आप जैसे जो शादीशुदा लोग हैं उनको इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से पता होगा, चेहरा देख करके समझ में आ जाता है कि यार घर का माहौल क्या है। बच्चों को भी समझ में आता होगा, बाबा को घर में जाने के बाद कि यार पापा मम्मी की लड़ाई हो रखी है ना, ये आज पापा मम्मी का मूड बड़ा सही है, आज मोबाइल आईफोन नया वाला मंगा ही जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस हम सबके पास है, और इंटीग्रेट टर्म्स जब सामने में आता है ना तब समझ में आता है ये तो मैं जानता था या नहीं जानते थे। लीडरशिप टीम वर्क एंड क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी की बात आई है, मैं कस्टमाइजेशन की बात कर रहा हूँ। क्लियर है, आगे बढ़े। मैं भी तो 12:30 बजे तक है। लास्ट है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडॉप्टेबिलिटी। चेंजेस होने में तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैंने ये पावर किया कैसे सीखा, सोचो कैसे सीखा।
इमोशनल इंटेलिजेंस लगाओ, यूट्यूब देख देख के मैंने सीखा। मैं क्या करता था, यूट्यूब का वर्जन डाउनलोड कर लेता था और उसमें गाड़ी में मेरे को करीब 1.5 घंटे लगते हैं, गाड़ी में कुछ चलाता हूँ, ड्राइवर का मैं 1.5 घंटा बैठ कर सुनते हुए जाता था, नोट्स बनाता था, फिर दूसरे दिन देखता था कि हाँ ये बन गया। आज मैं अपनी कंपनी में सबसे अच्छा पावर BI डेवलप करता हूँ अपने लिए। आई एम नॉट इन लेवल की, मैं दूसरे के लिए बनाऊंगा, तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं होती। तो कंटिन्यूअस लर्निंग, एडेप्टेबिलिटी जो है, adapting to changes. हाँ, बदलाव को मुझे एक्सेप्ट करना है। अगर मैं बदलाव नहीं, अपने को चेंज नहीं करूंगा तो क्या होगा, पीछे नहीं रह जाऊंगा, मेरे को बदल दिया जाएगा। अब वो पीछे रह जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेरा प्रमोशन नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर मैडम सफिशिएंट नहीं है, रिटायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो नमस्ते, दूसरा आएगा। टाइम नहीं है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर मैं जाता हूँ। मैं प्रोजेक्ट को किस लिए कवर कर रहा हूँ, सवाल है बताना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मैं क्यों कवर कर रहा हूँ? एट द एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट होता क्या है, पहले बताओ। आज यहाँ पर 9 बजे 10 बजे आना भी अपने में एक प्रोजेक्ट है ना प्रोजेक्ट, और उसको मैनेज करना है। घूमने जाते हो ग्रुप में गए, साथ में आपस में कहाँ गए थे? Industrial visits. अरे घूमने की बात करो, इंडस्ट्रियल रेस्टोरेंट। वो तो 1 घंटे के लिए खाने के लिए गए होंगे। You went to Ayodhya। Banaras. और कहाँ गए? Banaras. बनारस। अच्छा, मतलब ये धार्मिक स्थल के अलावा और कहीं नहीं जाता है? घूमने की जगह है। गोवा शोवा नहीं गए? गोवा गया, जुहू बीच, नेपाल। ओके, गुड, नाइस। आपस में गए, साथ में या वैसे गए पेरेंट्स के साथ? साथ में ये काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं 2 चीजों से, एक खाना बनाने की चीज से और एक घूमने की चीज से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझना जरूरी क्यों है? एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू मैनेज द प्रोजेक्ट व्हिच इज गिवन टू अस। जैसे किसी ने बोला कि मैंने ये देखा कि अमर उजाला के न्यूज़पेपर को गोरखपुर में कितने लोग पढ़ते हैं, है ना? आपका कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा उसको लेकर के, वो भी एक प्रोजेक्ट ही था आपके, है ना? तो उस प्रोजेक्ट के लिए आपने प्रोसेस वगैरह बनाए होंगे, आपका टारगेट ऑडियंस रहा होगा, सर्वे किस तरीके से मैं करूँगा, कॉमर्शियल भी रहा होगा उसके अंदर में, कैसे जाएंगे, कैसे पूछेंगे, लोगों के घर पे जाएंगे, कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग धुतकार भी भेज देंगे, वो भी हुआ होगा, है ना? फालतू में के टाइम में बारह का संडे के दिन सुबह 9 बजे आकर के पूछ रहा कि कौन सा पेपर पढ़ता हूँ। तो एक इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में जितनी प्रोसेस है ना, आपके सारे मैनेजमेंट में वो कवर हो जाएंगी। मैं इसमें आधा घंटा लूंगा, उसके बाद में एक और स्लाइड है मेरे पास में, उसमें मैं 15 मिनट लूंगा, तो मैं 11:30 टच कर रहा हूँ, मेरे को 10 मिनट का एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन आप लोगों का नेक्स्ट सेशन है 12 बजे से, है ना? तो जैसे मेरे वाले लैपटॉप में कुछ जुगाड़ किया था, मैं 3 चल रहा था, तो अगली फैकल्टी का सुनिए ऐसा कुछ कर देना, तब तक खाना खा के आता हूँ। किया था ना बदमाशी, लेट हो गए थे तो मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था। सबसे पहले क्या है, अब पढ़ने में नहीं आएगा, नहीं आया ना? हाँ, मैंने बोला मेरे स्लाइड पे क्या टेक्स्ट वो छूटे रहते हैं। नीचे में जो लिखा हुआ है वो है इनिशिएटिव प्रोसेस को पढ़ो पहले। सबसे पहले क्या है, किसी भी चीज का इनिशिएटिव प्रोसेस, कोई भी चीज को इनिशिएट करना। अमर उजाला के लोग जितने लोग पढ़ते हैं वो सबसे पहले आपके इनिशिएटिव प्रोसेस में सबसे पहले आपका क्या है, जैसे मैंने बोला आपको कि घूमने जाना हूँ, या मैं खाना बना रहा हूँ, या जैसे ये सेमिनार जो हो रही है उसको किसी ने अपने दोस्त की, बहन की, भाई की शादी की हो, नोट
में घुसते हो तो आप क्या देखते हो सडनली? पानी की 2 बोतलें भी रखी हुई है ना, और उसमें लिखा हुआ है कि योर पास। फिर आप देखो चप्पल भी रखी हुई है, फिर आप देखो पैर क्या कहते हैं ये जूता साफ करने वाला कपड़ा भी रखा हुआ है। फिर आप सोचते हो चलो यार मैं मुंह धो लेता हूँ, मुंह धोने जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर नजर आ गया टूथपेस्ट भी रखा है, ब्रश भी रखा है, और इस वाली कंपनी का वो भी रखा हुआ है मॉइस्चराइजर, जो कि मैं सोच रही थी कि मैं खरीदूंगी तो यहाँ मिल गया, वो तो मैंने मांगा नहीं था, वो भी रखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, वो उस होटल की अपनी रिक्वायरमेंट है कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, कस्टमर चाहे मांगे या ना मांगे ये मैं आपको दूंगा। आपका यहाँ पे भी हुआ होगा, आपको यूनिवर्सिटी में आने के टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी? एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी? प्लेसमेंट तो कोई भी यूनिवर्सिटी गारंटी नहीं करती है, तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रही होगी? एक अच्छी एजुकेशन, अच्छे पढ़ाने वाले टीचर, है ना, एक बैठने के लिए बढ़िया सा कमरा, आपको बढ़िया सी फैसिलिटी, अगर तो हॉस्टल में रहना तो हॉस्टल में रहने के लिए, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा लगी होगी जो शायद या तो सिलेबस पर लिखी गई होगी, या कुछ फैकल्टीज आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवा दोगे जो आपके कोर्स करिकुलम में नहीं लिखी होगी, तो वो क्या होगा, वो बेसिकली रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि कुछ फैकल्टी ऐसे होगी नहीं यार सिलेबस में है चाहे नहीं है, लेकिन ये मैं पढ़ाऊंगा, ये मैं पढ़ाऊंगी, क्यों? क्योंकि ये मेरे को लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए। दूसरा आता है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन है? ये एमबी के बच्चों को सबको जानना पड़ता है। स्टेक होल्डर्स कौन है? Everyone who is interested in the company, whether it is internal or external. Why company? Any organization. Any process. Any process. So interested or affected? Affected. Affected is the correct word. Correct, yes. Any person or persons or agency which are affected because of that particular project or work, so they are your stakeholders. अब stakeholders को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैडम आकर के चिल्लाना शुरू करे, वो स्टेक होल्डर है ही नहीं, तो मेरे को इनको दूसरे तरीके से हैंडल करना है। और ये अगर मेरे स्टेक होल्डर है और ये अगर मेरे पे चिल्लाती है तो मेरे को समझना पड़ेगा कि अगर मैं इतनी चीज को ढंग से एड्रेस नहीं करूंगा तो मेरी प्रोजेक्ट डिलीवरी पे अफेक्ट आएगा, है ना। तो स्टेक होल्डर से आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप बिजनेस में हो तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट, देन हमारे अपने क्या स्टैंडर्ड है, एंड देन मेरे स्टेक होल्डर्स कौन है। ये इनिशिएटिव प्रोसेस है, ठीक है। हर फंक्शन में काम में आएगा, चाहे आप एचआर में हो, एचआर में आप जाओगे, एचआर में जाने के बाद में आपके लिए कस्टमर कौन है? एम्प्लॉइज। कंपनी के एम्प्लॉइज आपके कस्टमर्स हैं। आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको उनको जब आप कमिटमेंट करोगे, आने के बाद में कुछ चीजें ऐसी होती है जो एम्प्लॉइज को लगेगी ये तो एचआर के किसी भी डिस्कशन में हमको नहीं बोला था, तब आप बोलोगे कि हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड है ना। नेक्स्ट प्लान स्कोप मैनेजमेंट। जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना पढ़ना, मैंने इसमें टाइम बचाने के लिए एक मॉडल में काफी सारे बॉक्सेस एक साथ लिए हैं। ब्लू वाले को पढ़ते हैं जो सबसे ऊपर में है, स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप मैनेजमेंट क्या होगा? शादी करने के लिए बैंक्वेट हॉल ले रहे थे, तो स्कोप मैनेजमेंट बैंक्वेट हॉल वाले के लिए क्या हुआ? आप बैंक्वेट हॉल के मैनेजर हो, ठीक है, आपने बोला कि मेरी बहन की शादी है, मुझे बैंक्वेट हॉल चाहिए। स्कोप मैनेजमेंट क्या हुआ? अच्छा, वो ठीक है, आता हूँ। और बैंक्वेट बोले थे बाराती कितने आएंगे, घराती कितने, हिंदी को बोलना, बाराती कितने आएंगे, घराती कितने आएंगे, वेज चाहिए कि नॉन वेज चाहिए, है ना। आपको जब बारात आ रही होगी तो कोई लड़कियां चाहिए क्या, गुलाब के फूल डालने वाली चाहिए, है ना। बरपाला के टाइम में वो माता मेरे को देनी है कि माता आप खरीद के लेके आओगे, है। खाने में स्नैक्स कितने टाइप के होंगे, तो आप क्या करो, आप उसको समझ लो। सब होने के बाद में सबने बोला कि मैंने 300 के लिए बोला है, लेकिन मेरे हो सकता है 325 भी हो सकते हैं, है ना। तो आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं सर 300 में 325 हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। वो क्यों बोल रहे हो आप? आपकी सबसे
ऊपर में लिखा है ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, आप बोलते हैं सर इतना हम करते हैं, लेकिन सर 325 से ज्यादा होगा तो सर हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। तो ये क्या होता है, स्कोप डिफाइन होता है, उसमें टाइम भी आएगा, है ना, डिनर चाहिए कि लंच चाहिए, जैसे आजकल तो डिस्टेंस डेस्टिनेशन मैरिजेस हो रही है जहाँ पर 3-4 दिन के लिए चले जाते हो पहले से। तो स्कोप समझना बहुत जरूरी है, अगर स्कोप नहीं समझ में आएगा तो बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो आप किसी भी लाइन में हो, तो सबसे आप सपोज एचआर में जा रहे हो, आपको बोला जाए कि इस पर्टिकुलर आदमी को आपको रिक्रूट करना है, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उसका जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है, उसका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस क्या होने हैं, तो क्या एजुकेशन बैकग्राउंड का सर आप ढूंढ रहे हो। नहीं आप उसको भी नहीं समझोगे तो गलत हो सकता है कि आप सीधी शॉर्टलिस्ट करके आ जाओ। उसके बाद में शेड्यूल मैनेजमेंट, वहां पे मैडम आएगा टाइम कि कितने बजे क्या, है ना, उस तरीके से। लाल में क्या में लिखा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या हो सकता है, बैंकेट हॉल पे शादी के टाइम में सर आए अपनी बहन की शादी, लड़की की शादी करते हैं, तो क्या क्या रिस्क हो सकता है, बाराती 350 से भी ज्यादा अगर तो खाने के ज्यादा हो सकता है, और बारिश हो सकती है, पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेटिव होती है, और फायर का, और खाना कम पड़ गया, और स्टाफ क्या ओके, और बाराती जो है शराब वराब के गुंडागर्दी करते लगे, है ना, या बाहर भी कुछ क्या कहते हैं इस तरीके के प्रवृत्ति के लोग अंदर में आ रहे, उनको कैसे प्रोडक्शन करेंगे। इतने बड़े एक फैमिली के एक शादी को हैंडल करना, मतलब ज्वेलरी पहन के विजुअल्स आएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे कोई इस तरीके की दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी आपको नहीं दिखाई देता। आप नाचने गाने में इतने व्यस्त होते हो, लेकिन देयर आर पीपल दोज हु आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। ये रिस्क भी है फैक्टर। ऐसे ही कोई भी अगर आप काम करोगे तो रिश्ते से मैं आपको बोला कि आप किसी के घर में जाओ तो आपको सुनने को मिला होगा कि यार 9 बजे सुबह आ गए, यार कोई टाइम है आने के लिए। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफ की बात आएगी, है? और क्या होगा स्टाफ के अलावा, फाइनेंसेस। पहले तो ये समझो कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, क्या होते हैं रिसोर्सेज, जो सबको यस मैन एंड मटेरियल और मशीन एंड मनी, 4 M's करके याद रखो ना, 4 M's आर द रिसोर्सेज, है ना, मैन मटेरियल मनी, है ना, ये 4 रिसोर्सेज। तो इनका मैनेजमेंट करना, है ना, इनका मैनेजमेंट अगर जरूर आ गया तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट आप अंडरटेक कर रहे हो उसमें इश्यूज आएगा। सर बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, आपकी मालाएं अभी आ रही है, 1 घंटे में पहुंच रही है। अब सर को टेंशन है यार पंडित जी ने तेरे का टाइम दिया हुआ है, तेरी माला नहीं आई है, ये सब। वो लड़की तो आ गई है लेकिन गुलाब की पंखुड़ी नहीं मिली, तो गेंदे के फूल फेंक दो। तो रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ को आते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ वेरी ट्रिकी थिंग्स, थिंक एंड आंसर। खाना टेस्ट अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड की बात की कि हमारी कंपनी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अभी भी नहीं पहुंचे वहां पे जहाँ पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। क्वालिटी वो होनी चाहिए जो इन्होंने डिफाइन की है। मैंने पूछा ज्यादा चीनी वाली मिठाई या कम चीनी वाली मिठाई, आपके हिसाब से गोरखपुर में अगर ज्यादा चीनी की मिठाई चलती है तो आपके लिए ज्यादा चीनी की मिठाई क्वालिटी है। क्वालिटी बेसिकली कस्टमर ड्रिवन। सबने बोला कि मुझे बिल्कुल कम मीठी वाली मिठाई, चीनी वाली मिठाई चाहिए। आप कितनी भी अच्छी बना दो, अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा मिर्ची पसंद है, किसी को कम मिर्ची पसंद है, तो क्वालिटी इज बेसिकली कस्टमर ड्रिवन। कस्टमर को मेरे क्या चाहिए, है ना, मतलब
आर नॉट जेंडर वाइज, जैसे बोलते हैं ना कि फीमेल्स टेक लॉट ऑफ टाइम टू परचेज और मेल्स डिसाइड फास्टर। तो जब तक आपकी पसंद के कपड़े आपको नहीं मिलेंगे, बहन जी बहुत अच्छी साड़ी आई हुई है लेकिन बहन जी को वो साड़ी चाहिए ही नहीं, तो वो साड़ी अच्छे से करोगे क्या? सबके साथ होता है, हम सब अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं। क्वालिटी इज ए वेरी ट्रिकी थिंग, वो क्वालिटी नहीं जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, वो क्वालिटी जो मेरे कस्टमर को आई कैन सजेस्ट इट। मेरे साथ थोड़ा सा देखो आजकल ट्रेंड इस तरीके का चल रहा है, लोग थोड़ा सा ऐसा पसंद करते हैं, ये मैं आपके पसंद का डाल देता हूँ, मैं थोड़ा सा ये आइटम भी रख देता हूँ, लोग पसंद करेंगे। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, somebody said about the fire, और किसी की तबीयत खराब हो गई, सब बहुत दूर से आए गोरखपुर में शादी करने के लिए, यहाँ पे दोनों लड़कों वालों ने बोला कि नहीं आप लड़की वाले हैं, आपको गोरखपुर में आके शादी करनी है, तो कुछ एम्बुलेंस का नंबर किया रिकमेंड, कुछ डॉक्टर के हॉस्पिटल के साथ में टाई अप, कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई, तो कैसे उन चीजों को मिला जा सके, है ना। आपने डीजे का स्टेज बनाया 5 आदमी के लोड के हिसाब से, 5 आदमी आपने कंसिडर किया कि 80 किलो का आदमी होगा तो एक 80 × 5 400 किलो, नाचते समय इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो 600 किलो तक का वेट होगा, 12 आदमी चढ़ गए, हो जाएगी। तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एग्जांपल व्हिच इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट ये एग्जांपल्स आपको जो भी आप काम करोगे उस प्रोजेक्ट के हिसाब से सोचने पड़ेंगे, ठीक है। इजी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जिससे समझ पाओ। फिर आते हैं ग्रीन वाले का, नीचे वाले का कॉस्ट मैनेजमेंट। सारी बातें होंगी, हम सर बोलेंगे कि पैसे कितना हो गए, है ना, एंड आपको कम्पीट भी करना है मार्केट के साथ में और उनको उनका बेस्ट भी देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अयोध्या घूमने गए थे, है ना, तो कुछ प्लान किया होगा कि कितना खर्चा करेंगे हम लोग, तो अयोध्या में उनको नहीं बोलते हैं, वो गलत हो जाएगा। कोई और एग्जाम्पल लो, नेपाल। नेपाल में लेते हैं। नेपाल में कहाँ गए थे? एक दिन अरे यार पोखरा एक दिन की जगह ही है, पर वहाँ से वहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे खाया था, दूसरे जगह पे गए थे वहाँ से। अच्छा, पोखरा कम से कम 6-7 किलोमीटर रेंज की जगह है, आप गए हो? मैं नेपाल को पोस्टेड था 93 से शायद 94 से 96 या 93 से 96 में बहुत अच्छी नेपाली बोलता था, मैं नेपाली बहुत अच्छी बोलता हूँ, उड़िया समझता हूँ, बंगला समझता हूँ, तेलुगु समझता हूँ। दस इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो मैं ज़्यादा आप समझते हो, लेकिन मैं बहुत कम लोगों को बोलता हूँ। कई को लोग मेरी बुराई कर रहे होते हैं, बंगला में मुझे सब समझ में आता है, ठीक है हाले कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक दिन के लिए नेपाल का टूर कितने दिन का था? 3 डेज का था। तो कुछ पहले प्लान किया हुआ इतना खर्चा करेंगे, है ना, उस खर्चे को होते पैसा नहीं सकता ज़्यादा लगते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जैसे अपन ग्रुप में जाते हैं तो अपन हिसाब लगा लेंगे अपन इतने 1000 रुपये खर्च करेंगे, शाम को क्या होता है एक बंदा हिसाब लगा रहा होता है ना, फिर नेक्स्ट डे के लिए क्या होता है बोलते हैं यार एक्चुअली क्या था कि आज ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं है ना, तो लेट अस स्किप द ब्रेकफास्ट। क्यों हो रहा है वो ब्रेकफास्ट? पेट खराब नहीं हो रहा, पेट खराब हो चुका है ना। यहाँ से सपना देखा हुआ कि वहाँ पे जाएंगे तो हम ये चीज़ खरीदेंगे, बट सडनली आपकी परचेजेस लिस्ट में से आउट होनी शुरू हो जाती है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपका पहले दिन में कम खर्चा हो गया तो दूसरे दिन हो सकता है कि आप डिसाइड करो कि अच्छी रूप में जाके खाएंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली यू हैव टू डू दैट कॉस्ट मैनेजमेंट की बजट बनाना है पहले आपको कि मेरा खर्चा कितना होगा, फिर आप क्या करोगे वो खर्चे को मॉनिटर करोगे। आगे वाले प्रोसेस में आएंगे तो मैं बताऊंगा। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या मतलब हुआ? थोड़ा पानी बताओ। बट वो तो कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट किसको कम्युनिकेशन करेंगे, कौन करेगा कम्युनिकेशन? अगर आप इतने सारे लोग कंपनी में हो
people will have certain limitations. They will say, sir, I am not authorized to talk of this. I am not authorized to write this. मीडिया रहेगा आपके पास तो you will say, sir, I am not authorized to do that. Communication management में वो बहुत important है. मैं मेरी क्लाइंट है, अगर वो आगे मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं क्या इसे बदतमीजी करना, वैसे तो बदतमीजी लाइफ में किसी से नहीं करनी चाहिए, बट कैन आई डू दैट? मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा. वो हो सकता है मेरे स्टेक होल्डर्स नहीं है, वो फालतू में मुझे धमका के चले जाए, तो हो सकता है कि इनके साथ में वो कर पाऊँ. तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज लिंक्ड विद द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. आपने जो बोला कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सही बोला कि करके कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो सारी चीजें ठीक है, बट मैनेजमेंट में क्या है कि कौन करेगा, किसके साथ करेगा, कितना करेगा, क्या मुझे वो इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है. क्लेम मैनेजमेंट एक चलन वाला. फिर से चलते हैं वापस सर की शादी की बात में. सर की शादी के लिए सर की अभी बोला सिस्टर की, सॉरी सर सर को लेना होता है. आपकी शादी हो गई सर? सर गलती यही हो गई, सर की शादी की बात है. तुमको की नाराज है यार, बस ये देख रहा हूँ कि सर नाराज क्यों है. देखिए ये इमोशनल इंटेलिजेंस से हमको कैसे पता चला कि सर की बहन की शादी हुई थी, तो बताइए आपको. तो क्लेम मैनेजमेंट में क्या होगा, अब सर का शादी आदि सब हो गया, विदाई हो गई, अब क्या हो रहा है क्लेम मैनेजमेंट में बताओ. नहीं, अब क्या क्लेम मैनेजमेंट क्या हो रहा है बताओ. क्या चीज? अरे क्लेम मैनेजमेंट तुम्हारा है, उनका नहीं है. सर 125 लोग 325 लोग की बात रही है, 335 लोग खाना खा के गए हैं. सर 2 कंबल गायब है ना. मैडम और आगे बढ़ गई, 4 कुर्सी भी गायब है. ठीक है. सो दीस आर द बेसिकली क्लियर कि सर बात ये होगी कि आपके सारे गेस्ट नीचे बुफे में खाने आएंगे, लेकिन 4 लोगों ने खाना ऊपर में भी मंगवाया, उसकी बात नहीं हुई थी हमारी, तो वो पैसा एक्स्ट्रा लगेंगे. ठीक है. सर सडनली जो है आपके पिताजी ने बोला था कि मालूम नहीं, चिंता नहीं, मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, तो सर मैंने लास्ट मोड में आपके लिए अरेंज किया जो हमारे डिस्कशन में हमारे एग्रीमेंट में नहीं था. ठीक है. अब सबको पता होना चाहिए कि अब यहाँ डिस्प्यूट चालू होगा. फालतू की बात करते हो, मेरे तो 325 लिखे, मेरे 310 थे, दिखाओ क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में 350 है. वो एक क्लेम मैनेजमेंट का एक मैटर है. ठीक है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिस्कशन होगा सर के साथ में? वो तो कॉस्ट मैनेजमेंट में हो रहा है. नहीं, कॉस्ट मैनेजमेट में डिस्कशन हो रहा है कि कितना पैसा किसमें लगेगा, एक प्लेट का क्या पैसा लोगे, तो 300 लोगों का कैसे कॉस्टिंग करेगी, फूड का क्या पैसा लगेगा, है ना. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली सर एडवांस चाहिए आपसे 25% का, उसको अपने कैश फ्लो मेंटेन करना है ना. और सर पेमेंट जो है सारा जो है जाने वाले दिन देके जाओगे. These are the things in the financial arrangement. आप समझो सर, हमको भी मार्केट से चीजें खरीदनी पड़ती है, मैं रॉ मटेरियल खरीद के लेके आऊंगा, तो 10% तो सर आपको आज देना पड़ेगा, पर जिस दिन शादी होगी उससे 3 दिन पहले आपको मेरे को कम से कम आधा पैसा देना पड़ेगा. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात है. क्या खर्चा होगा, कैसा नहीं होगा, वो कॉस्ट मैनेजमेंट में खर्चा होगा, डिस्कशन हो गया. तो these all are called प्लानिंग प्रोसेस. तो जब मैं प्लानिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो प्लानिंग के अंदर में मेरे को स्कोप मैनेजमेंट को समझना है, प्लान समझना है, मेरे को लिख के रखना है कि क्या क्या मैंने आपसे एग्री किया था. शेड्यूल मैनेजमेंट की कितने बजे कौन लोग कैसे लेंगे, रिस्क क्या क्या हो सकता है उसके बारे में लिखना है. रिसोर्स मैनेजमेंट, कौन कौन से रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे, क्या क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, क्या सेफ्टी और एनवायरनमेंट इश्यूज आ सकते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन है. अब सर लोगों को बताइए कि अगर आप बिजी रहेंगे कौन कौन होगा जो आपके बिहार में बोलेगा. तो सर ने सब बोला कि नहीं, इनको भी मैं जो हूँ घर के हमारे बड़ी हैं, ये अगर बोलेंगे तो आप इनकी भी बात मानना. तो आपको क्या हुआ कि इनके बोले हुआ भी करेगा. तो क्लेम मैनेजमेंट के टाइम में आया था, आपको बता दिया कि इन्होंने बोला था कि ऐसा कर दो, तो नाउ शी इज ऑथराइज्ड, तो ये तो सही कि हाँ ठीक है, अगर उन्होंने बोला था मैं बताऊँ. प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट छूट गया. प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट क्या होगा, आप जो भी चीजें
है, या जैसे मैंने वो इंस्टा पे देखा था कि वो एक बहुत अच्छे से एक लड़की आती है, वो बहुत बढ़िया बढ़िया गाने बजाती है, तो उसको अरेंज करना, हायर करना, या मेरे को इस तरीके का स्टेज चाहिए, है ना? मैं तो मुस्कुरा रही है, देखो याद आ रहा है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, है ना? अब इतनी सारी चीजें हैं, तो इनको करने के लिए क्या चाहिए मेरे को? इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। अब इन चीजों को सबको संभालने के लिए मेरे को एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये सारी प्रोसेसेस को इंटीग्रेट कर सके। नहीं तो क्या होगा कि ये हेपेजाइट हो जाएगा, ये कंट्रोल में नहीं है ये चीजें, सारी चीजें एक दूसरे के साथ में लिंक है। एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें मेरी कॉस्ट है, सारी चीजें मेरा फाइनेंस है और मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। तो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कहलाएगा। ये बेसिकली दिस इज नथिंग, इट इज कॉल्ड डेवलप द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ये आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक प्लान बनाया। थोड़ा सा मैं और इसको एक नेक्स्ट लेवल आपको बता देता हूँ। जैसे मैनुअल चीजें मैं आपको बोल चुका हूँ। जब मैं स्कोप मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो रिक्वायरमेंट को करेक्ट करना, जैसे आपने पूछा सर कितने लोग आएंगे क्या आएंगे, फिर आपने क्या किया कि स्कोप स्टेटमेंट बनाया। इस सब देख लीजिए, ये हमारे बीच में आपके बीच में बात हुई है, इसको साइन कर लेते हैं। देन उसके बाद उसने क्या करेगा, उसने बोला कि शेड्यूल बनाना है, तो आप क्या करोगे, वो लिस्ट आउट करके WPS में डालोगे, वर्क नेटवर्क स्ट्रक्चर। वो बनाने के बाद में आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, एंड देन आप रिस्क रिस्पॉन्स, अब जरूरी नहीं है कि जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए वो सारे रिस्क आए, या जब ऐसा रिस्क होगा तो क्या रिस्पॉन्स होगा हमारा। आग लग गई तो रिस्पॉन्स क्या होगा, कौन उसको हैंडल करेगा, लड़ाई होगी तो कौन हैंडल करेगा, स्टेज टूट गया तो कौन हैंडल करेगा, है ना? एंड देन यू आर मेकिंग द शेड्यूल मैनेजमेंट। उसमें आप क्या करो, एक्टिविटी डिफाइन कर रहे हो, कितने बजे बात इंटर करेगी, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, फिर एक्टिविटी का सीक्वेंस। आपके मतलब जब आप एक्टिविटी की लिस्ट आपने बना ली, बट उसका सीक्वेंस बहुत जरूरी है ना? मेरे जो बाकी के होंगे ना, पहले तो घर वाला होगी, और कुछ एक्टिविटीज पैरेलल भी होंगी। नहाने के बाद हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े तो सारे निकाल के एक साथ रख देते हैं, लेकिन पहनने का अपने सेम थिंग प्रोजेक्ट में भी है। हमारी एक्टिविटी की लिस्ट व्हाट्सएप पे रहेगी, बट एक्टिविटीज की सीक्वेंस होगी। कुछ एक्टिविटी एक दूसरे से डिपेंडेंट होगी, जैसे जब तक लड़के वाले नहीं आएंगे तब तक लड़की वालों के लिए भी खाना नहीं खिलाया जाएगा। तो एक्टिविटी की डिपेंडेंसी है। अरे यार मैंने बताया था तुमने खाना कैसे चालू कर दिया, देखो बेटा बस नहीं विदाई फेरे के बाद ही होगी। तो देखा सके प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो डिपेंडेंसी एक्टिविटी के साथ भी हो सकती है, डिपेंडेंसी एक्टिविटी की रिसोर्स के साथ भी हो सकती है कि जब ये रिसोर्स होगा अवेलेबल तब वो एक्टिविटी, है ना? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक एक्टिविटीज में टाइम कितना लगेगा, एस्टिमेट एक्टिविटी का ड्यूरेशन, कितने कितने दिन की वो एक्टिविटीज रहेगी, रिसोर्स शेड्यूल। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, शेड्यूल बनाओगे, क्यों बनाओगे, क्योंकि आपको अपनी टीम को बताना है, और आपके टीम मेंबर्स हो सकता है कि एक एक एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट टाइप के टीम मेंबर्स होंगे। जब खाना लगाने वाली एक टीम होगी, खाना खिलाने वाली एक टीम होगी, छोटे बर्तन उठाने वाली टीम आपकी डिफरेंट हो सकती है। लोग बुरा मान सकते हैं कि आप जो रोटी खिला रहा था वो छोटे प्लेट उठाया। देन आप अपने शेड्यूल को एक बार रिव्यू करोगे, सबके साथ में बैठ के सब ये प्लान देख लीजिए हम इस तरीके से करने वाले हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। एक्टिविटी एस्टिमेट है, एक्टिविटी रिसोर्सेज, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। एस्टिमेट कॉस्ट और डिटरमाइन बजट मैंने आपको नेपाल वाली बजट को बता दिया था कि आपने जो मुझे बात की है हंसी क्यों आई मेरे को पता नहीं आया, समझ नहीं आया, हंसने वाली बात करी। कैश फ्लो फोरकास्ट मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें कि दैट इज नथिंग दैट कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो ये मेरी बेसिकली प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद क्या, सबसे पहले एडवांस दे दिया, मैंने प्रॉमिस कर दिया, मैंने समझ लिया कि ये हो गया। उसके बाद क्या, एग्जीक्यूशन में क्या होगी प्रोसेस, सबसे पहले रिसोर्सेज को एक्वायर करना है। जो मैंने इनको कमिटमेंट किया है रिसोर्सेज को मुझे एक्वायर करना है। रिसोर्सेज क्या है, 4 है, क्या रिपीट करने की जरूरत है, आप करो।
अच्छा, तुम लोग डिफरेंट एरा के हो, हम लोग उस एरा के हैं जब वो कैसेट होता था ना, ऑडियो वाला, वो टेप होता था, और जब वो टेप बन जाता था ना तो एडी आवाज आती थी। क्या सर आप उस एरा में हो? आप नहीं। अच्छा, कुछ टीम को हो सकता है कि आपको डेवलप करना पड़े कि मेरे को वो सामने उन्होंने ये रिक्वायरमेंट दी हुई है तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे करना है, उन्होंने ये बोला है ग्लव्स पहन के लोग आने चाहिए या मास्क पहन के लोग आने चाहिए या बिल्कुल प्रॉपरली इस तरीके से रहना है, तो आप अपनी टीम को डेवलप कर लो कस्टमर की नीड के हिसाब से, एंड देन आप टीम को मैनेज करो। एक आध बार में नहीं करते देखते हो कि वो कान में ऐसा लगा करके वो हाइब्रिड सिस्टम हो गया है, वहां से चल रहा हो या पॉकेट वॉकी से चल रहा हो, तो टीम को मैनेज कर रहा है ना। एंड देन मैनेज कम्युनिकेशन, जैसे हमने प्लान किया था वैसे कम्युनिकेशन को मैनेज करना है, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की चीजें जो हमने प्लान की थी उसको परफॉर्म करना है, रिस्क जो हमने किए थे रिस्पॉन्सेस को इम्प्लीमेंट करना है, अगर कोई चीज हो जाती है तो कैसे उसको होगा, मैनेज द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। लोग आएंगे मैडम आगे गुस्सा करते हुए क्या करो तुम यहाँ पे, तो उनको भी समझाना है कि नहीं यार मैडम समझ गया कि 2 मिनट में हो रहा है कि हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे करना उसको जरूरी है। मैनेज क्वालिटी, कंप्लेंट आ सकती है क्वालिटी से रिलेटेड, या प्रोसेस के बीच में मैं क्वालिटी में किस तरीके से चेक करूंगा कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफिल कर पाऊं। वी विल डिस्कस अगेन इन द लास्ट 10 मिनट्स। प्रोक्योरमेंट को कंडक्ट करेंगे और क्लेम आइडेंटिफिकेशन एंड पार्टिसिपेशन भी करेंगे। एक आदमी कितना होगा कि 325 प्लेट तो चलेंगे या 15 आदमी और खाएंगे, ये करना जरूरी है। दिस इज बेसिकली लर्निंग द एजुकेशन। उसके बाद ये सब तो चल रहा है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है स्कोप, लोग ज्यादा आ गए, मैम ने कुछ रिक्वायरमेंट ऐड कर दी, नई चीजें मेरे आ गई, उधर उल्टा चल रहा होगा। 325 बोले थे 275 ही आए, 50 का रिबेट मांगूंगा, है ना, वो तो मॉनिटर कर रहे हैं। इसको बोला था कि ये वाले फूल की माला चाहिए, इसने ये लगाए नहीं है, इसको ये बोले कि गाना के जो मैंने 5 से लगाए नहीं थे इसका पैसे काटूंगा, है। दोनों तरफ में वो मॉनिटरिंग चल रही है। कंट्रोल शेड्यूल, टाइम से चीजें मैंने जो प्लान किया हुआ था, कंट्रोल रिसोर्सेज, मॉनिटर द रिस्क, क्लेम प्रिपरेशन, कंट्रोल प्रोक्योरमेंट, कंट्रोल क्वालिटी, मोटा-मोटा मैं कवर कर चुका हूँ, है ना। ये सब जितना आता है परफॉर्म का इंटीग्रेटेड चेन कंट्रोल। अगेन ये इतने सारे कंट्रोल हैं, इनको भी आपस में आपने इंटीग्रेट करना है। हो गया? अब क्या शादी हो गई, विदा हो गया अपना। अब आप क्या करोगे? क्लोज प्रोजेक्ट बेस्ड और बिजनेस क्लेम रेजोल्यूशन एंड परफॉर्म द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बैठ करके आप आपस में टेबल डिस्कशन करोगे, क्या सर एक्स्ट्रा क्लेम है आपकी तरफ से उनकी तरफ से, और सर आप पेमेंट दे दीजिए। जब तक वो क्लोज नहीं होगा तब तक आपका प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हुआ। These are the basically processes which you have to perform in any project. बहुत जल्दी किया, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेरे को बहुत साल लगे इसको समझने में, और जिस दिन आपको ये सारी प्रोसेसेस समझ में आ जाए उस दिन आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनोगे। ठीक है? कुछ सवाल है इसमें रिलेटेड? मैंने स्टार्टिंग में चीज बोली थी, कोई सवाल नहीं है तो समझ में आ गया, या कुछ समझ में नहीं आया, कोई चीज नहीं है। अच्छा, तो फिर 5 मिनट का एक्सटेंशन दो, लिख लो, मैं को बुला रहा हूँ, तो जाने को देना तो कुछ बताओ। यस
मेरे को काम करने का तरीका बदलना पड़ सकता है। हो सकता है कि मैं टाइम से कर रहा हूँ लेकिन मैं क्वालिटेटिव काम नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे मेथड चेंज करना पड़े, मुझे रिसोर्स चेंज करने पड़े। जो लोग उस काम को करने में इन्वॉल्व हैं उनकी कॉम्पिटेंसी का इशू है, मैन का, इक्विपमेंट का या मटेरियल का। मटेरियल को उस स्पेसिफिकेशन का नहीं लगा रहा हूँ तो मुझे स्पेसिफिकेशन का लगाना है। आई होप आई एम क्लियर। एनी क्वेश्चन? नहीं? चलो, ये थोड़ा सा थकाने वाली एक्सरसाइज होती है। दिस आई कैन टेक फॉर 1 hour to 10 days। एक स्लाइड जल्दी जल्दी किया, इंटरेस्ट जगह दे दिया। किसी ने कहा, आप तो थोड़ा सा समरी कर देता हूँ आपके लिए आसान करने के लिए। सार इतना बड़ा जो बताया, किसी भी काम को करने के लिए क्या चीज का आंसर चाहिए? थोड़ा जोर से बोलो ना। आप बोलो ना सर जोर से। क्या लिखा था? 4 basic rules। नहीं सर, लिखा क्या है? अरे रुको ना भाई, जोर से बोलो। To execute the project successfully। नहीं समझ में आया, आपको सुनने में आया था? थोड़ा जोर से बोलो ना, बस धीरे बोलेगी। Sir, to execute a project successfully, फिर you need to answer of these 4 basic questions। बेसिक क्वेश्चंस। कोई भी काम को करने के लिए, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली करने के लिए मेरे को 4 चीजों के, बेसिक चीजों के आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या? याद करो सबसे ऊपर क्या था? What you are? Where you stand? क्या करना है? What is to be done? सर की बहन की शादी है, मैं बर्थडे का डिजाइन कर रहा हूँ, जैसे केक लगा दूंगा, गुब्बारे लगा दूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? व्हाट इज टू बी डन। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है काम को करने की। जब तक मेरे को रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएगी मैं उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। कई बार होगा आपके फैकल्टी अफसर कोई क्वेश्चन पूछते होंगे, आपने सुनते ही नहीं है, आंसर देना शुरू कर देना है। होता होगा, तो बोलते होंगे नहीं मैंने ये नहीं, मैंने ये पूछा। तो सबसे पहले सबको तो सही नहीं समझ पाया, दोबारा पूछो, तीसरी बार पूछो। इरिटेशन हो सकती है सामने वाले की, पूछने वाले की, लेकिन आपका आंसर शायद सही होगा। तो व्हाट इज टू बी डन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, पुरानी वाली स्लाइड की फोटो खींची हुई है ना, उससे याद करके चलो, उसी में साथ चल रहा है। सेकंड, कैसे करना है, क्या तरीका होगा काम करने का। तो मेरे 5 है हो गए, मेथड, मटेरियल, मैन पावर, मशीन है, मनी। क्या करना है? वो उसने लड़के ने बोला था वहां से शेड्यूलिंग की बात करेंगे, कब करना है ना? बादल चला हुआ, विदाई चल रही है और आपने डीजे लगा दिया है। तो वेरी नाइस लिमिटेड। हमारी सबकी प्रॉब्लम है, हम लोग बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, मैडम ने एक सवाल पूछा कि मेरी चीजें डिले हो रही है तो उसको कैसे कंप्लीट करूंगा। तो मेरे को प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है। हाउ टू इंश्योर इट इज डन, मतलब मेरे को प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। कुछ अगर चीजें छूट गया तो समबडी मस्ट मॉनिटर है। ठीक है, बाकी जो तुम लोगों ने बोला वो सारी चीजें ठीक है, ऐसा नहीं कि वेयर इट इज टू बी डन वो सारी चीजें, बट वो हाउ दिस टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी डन के अंदर में कवर्ड है। इन स्लाइडों के ऊपर में 5-5 स्लाइडें हैं। फिर कभी बैठेंगे आप एक दिन के लिए बुलाओगे तो मैं कवर करूंगा, कितने कम पीरियड में कवर करना मुश्किल है। बट ये स्लाइड पुराने वाली स्लाइड को कॉम्प्लीमेंट करती है, थोड़ा सा और आसान बनाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए, जिससे आपको याद रहे। जैसे रिसोर्सेज हो गए 5 है, इंक्लूडिंग बजट, ये सारी बातें हो गई। याद कैसे रहेगा? कितना नाम सीखा है, इससे याद रहेगा। आसान है इसको याद रखना। Yes, sir. प्लान 2 जगह है, Check that. सबसे
सारे मैंने जो बताया फोटो खींची हुई है उन सबको मैंने प्लान करना है। प्लान करने के बाद मैं क्या करूंगा, नहीं उसको सुंदर सा बना के लैपटॉप के बैग पर रख दूंगा। सबसे पहले मैं कम्युनिकेट करूंगा अपने टीम मेंबर को कि भाई वो मैंने ये चीजें कमिट हुई है, फिर उसको प्रूव करूंगा। प्रूव करने का मतलब एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करूंगा, चेक करूंगा कि जैसे बोला था क्या क्या चीज चेक करूंगा, क्या क्या चीज चेक करूंगा, चेक करूंगा, स्कोप चेक करूंगा, जो बोला था जिस समय बोला था कॉस्ट चेक करूंगा, क्वालिटी चेक करूंगा, क्वांटिटी चेक करूंगा, तो सारी चीजें चेक करूंगा, है ना। उसके बाद में क्या करूंगा, एक्ट में क्या करूंगा, एग्जीक्यूशन तो रूम में हो गया, करेक्टिव एक्शन। तो करेक्टिव एक्शन से पहले क्या करूंगा, एक्शन करेक्टिव किसको करूंगा, मैंने आपने मेरे को एक काम किया, मैंने उस काम को कर दिया, तो करेक्टिव एक्शन किस चीज का करवाओगे, कुछ गैप होगा तो गैप होगा, तो गैप होगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने गैप आइडेंटिफिकेशन करूंगा चेक में। आपने मेरे को बोला था कि ये क्वालिटी का सामान देना है, आपने वो क्वालिटी का सामान नहीं दिया। आपने बोला था यहाँ पे किस चीज का आपने कुछ नहीं कराया, तो गैप आइडेंटिफिकेशन करूंगा, ऐसी प्रैक्टिस से करेक्टिव एक्शन होगा। जो मैंने बोला डॉक्टर के पास में जाते हो तो सबसे पहले आपको टैबलेट देता है, करेक्टिव एक्शन के बाद उसके बाद एक और होगा, ये बात नहीं करेगी तो क्या होगा, ठीक होगी करेगा के बाद सही आप बता रहे हो डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करेक्टिव एक्शन देता है, कंट्रोल करना है, तो आप ही ऑपरेटर के पास जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, मैंने बोला था गैप आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो मेरी अभी की बजट कंडीशन है उस डिजायर्ड कंडीशंस के अलावा दूसरी स्टेज तो मैं बीमार हो गया। उसके बाद मेरा क्या हुआ, आपने करेक्टिव एक्शन लिया, मुझे दवाई दी, मैं खुश होकर जाने लगा डॉक्टर ने बोला इधर आओ, रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए उसने तय हो गया बैठो ऐसे ट्रीटमेंट होती है, ऐसा लगता है पकड़ के देने के लिए पुलिस आई है, मैंने ऐसे कोई गलती कर दी, सॉरी। करेक्टिव एक्शन होगा, रूट कॉज एनालिसिस करूंगा कि जो मेरा गैप हुआ उस गैप का होने का मेरा रीजन क्या था, उसके बाद में करेक्टिव एक्शन होगा। चीजें सारी ठीक हो गई, क्या ठीक खत्म, ये चीज दोबारा ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लूंगा, वो प्रिवेंटिव एक्शन मेरे प्लान का हिस्सा होगा, पूरे साइड को मिल जाएगा। तो आप क्या करते हो, जब कुछ होने के बाद जब आप कैसे फैकल्टी को चीज करते हो, आपने जब क्लास में पढ़ाने जाते हो, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आज मेरा सेशन गड़बड़ गया, आपको रूट कॉज समझ में आता होगा, है ना। आजकल आप जब पढ़ाते होंगे तो मोबाइल में गूगल पे जाते होंगे, तो ढूंढते होंगे, फिर आप समझते होंगे कि मैंने क्यों लगा है ना। आपको यहाँ से बैठे बैठे समझ में आ रहा होगा कि बेंच में क्या चल रहा है, स्मॉल एग्जांपल। आप प्रिवेंटिव एक्शन लोगे, केले के छिलके में पैर रख के गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। आपने आपको क्या करना है, आपको अगर केले के छिलके में पैर रख लिया तब तो गए नहीं, फर्स्ट एड करके बचा सकते हैं। तो प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, या तो केले का छिलका वहां फेंकोगा, और दूसरा ये है कि केले के छिलके में अगर पैर मत रखो, दैट इज द प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है। तो पीडीसीए याद रहेगा, तो जो अभी तक बताया उसका साथ पीडीसीए, अब इतने के बाद ही याद रहेगा तो ना आएगा। चलो क्लियर, यस सर। अब एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगा मैं 10 मिनट की। ये हमने सारी दुनिया भर के प्रोसेसेस की बात करी, कौन पढ़ेगा? Standardizing processes, best practices and strategies. Standardizing processes, best practices and strategies. क्या दिखाने वाला हूँ मैं? क्या बताने वाला हूँ? हम अपनी प्रोसेस को कैसे
स्टैंडर्डाइज करें मतलब मम्मी के हाथ का खाना और बहन के हाथ का खाना और पड़ोस वाली आंटी के घर के हाथ का खाना तीनों का खाना पर एक सा बने तो कब पॉसिबल है जब ये प्रोसेसेस एक सी हो, है ना? कोको कोला तो वो तो सीड आइटम है, मैं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में खाऊं, चेन्नई में खाऊं, बॉम्बे में खाऊं, उसका बर्गर का टेस्ट सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा जब मेरी प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज हो, then I can say I am a brand, otherwise I am not a brand. चाय पीते हो? चाय पीते हो? यहाँ पीते हो? नहीं तो यहाँ नहीं पीते वो बिल्कुल नहीं पीते या यहाँ नहीं पीते क्योंकि ऐसे ही नहीं पेट के लोग वो सब तो चाय पीते हो बताओ चाय पीते हो? यहाँ भी पीते हो? यहाँ पे कहाँ पे पीते हो? एक ही कैंटीन है? दोनों कैंटीन में चाय सेम बनती है? डिफरेंट है? क्या कारण हो सकता है? अब यहाँ पे एक काम करते हैं, आप जितने लोग हो ना एक एक चीज का आंसर देना और पास ऑन, सारे नहीं बोलना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। क्वालिटी ऑफ लेकिन अब उसका नंबर है ना तो अपन वहां से चालू करेंगे, वहां नहीं बोलना है। अगर नहीं होगा आप बैठ जाओ दूसरा बोलेगा, अरे उसको बोलना पड़ेगा, मुझे कार्य करो 5 मिनट का टाइम है बोलो। टी लीव्स की क्वालिटी बैठो नेक्स्ट, अगर मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो पास ऑन। स्वीट टेस्ट ठीक है नेक्स्ट पास नेक्स्ट है जोर से बोल रहे समझ में आया क्या बोला? नो सर समझ में आया? नो सर जोर से बोल क्वांटिटी ऑफ मिल्क समझ में आया? क्वांटिटी ऑफ मिल्क फ्रेश मिल्क जोर से बोलो यू वांट टू पास जोर से बोल जोर से बोल we put it in the tea ingredients which we put it in the tea good next Sir, proper boiling. very good next The tea leaves or the quality of the product we use. tea leaves की quality repetitive next milk repetitive गिनती से 4 या 5 आए अभी next पास पास चाय नहीं बनाई लड़कियों ने कभी भी अपने घर में आज तक, ये इसलिए पास कर रही है। Process of Making the tea. making a Tea. process of making a tea very good pass मैं तेरा जोर से आ रहा हूँ ड्यूरेशन ऑफ द बॉइलिंग ऑफ द टी क्या मैम हाँ बोलो ना प्लीज रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर वेरी गुड Where to add what? देखो इन्होंने चाय बनाई है। Sweetness of putting the things की पहले चाय की दूध की डाली है, किसी की बनाई की दूध बनाई की। आपको भी चाय बनाना है, आपको लगे ना चाय। Using the चाय मसाला, okay? Yeah. Use of coffee powder in tea मेरे पहली बार सुन रहा हूँ कि चाय में कॉफी भी मिला है। कभी कभी पता है हाइजीन की वजह से चाय अच्छी बनती है कि वो आदमी के इतना पसीना आता है कि और वो एक ही चाय पत्ती में बार बार बनाते हैं। हाइजीन ओके क्या बोली हाइजीन गलत है वो नेक्स्ट आप इतने सीरियसली बैठो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कुछ नया बोलोगे आप जोर से बोलो multiple times use the tea leaves very good Sir, level of sugar. level of sugar fantastic Sir, price. Price. price of tea Yes, sir. very good next सर सर्विस क्वालिटी yes देखो क्या बात है डिपेंडिंग ऑन आओ yes next यूजिंग डिफरेंट using different utensils पीतल के बर्तन में बनाई थी नहीं मेरी डीपीटी ठीक कर दी ना next
hygiene sir Mixing water in milk. जोर से बोलो Mixing water in milk. mixing water in the milk very good sir anything you want to contribute I know कि नहीं है but anything चाय के बारे में तो बोल सकते हो Sir, cost involved. cost involved in making okay anything else देखो तारीफ का होगा हाँ और भी कुछ कहना है किसी को चाहे छोटी सी चीजें कब में मिलती है उसकी प्रोसेस के अंदर में हमने इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस ढूंढ लिए अब आप सोचो जब हम कोई भी चीज के बारे में बात करते हैं जब आप कोई भी एक लागू करोगे जब ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली नथिंग देन इट इज व्हाट many people in the coming together is becoming an organization तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ ऑपरेशन की बात करता हूँ तो सारे लोग एक तरीके से उस चीज के ऊपर में करेंगे कि वो प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस बन रही है वो कई लोगों के उसमें बन रही है छोटी छोटी प्रोसेस नहीं कहीं हो रही होगी है ना इंडस्ट्री 4.5 में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे जब आपने बोला कि कोई चीज बाहर की यहाँ बन रही होगी तो उन चीजों में इंटीग्रेशन कैसे होगा जिस दिन मैंने ये चीजें कंट्रोल कर ली तो मेरा प्रोडक्ट मेरी सर्विसेज विल बी सेम चाहे मैं यहाँ गोरखपुर में आकर डिलीवर करूँ या मैं दिल्ली में डिलीवर करूँ चाहे कहीं भी कुछ बने होगी दैट इज द रीजन मैकडॉनल्ड इज एबल टू कंट्रोल इट मैं दिखाता हूँ शायद कुछ इसकी है आप लोगों ने और कस्टमर रिक्वायरमेंट किसी ने नहीं बोला मीठी चाय की पीती चाय ग्रीन टी की सुपर ग्रीन चाय हाँ तो सबसे पहले तो वही चीज है ना तो सब चाय बना करके पिलाने लग गए उसको चाहिए क्या मैं ये तो पूछो रिक्वायरमेंट की सबसे पहले बात हुई थी 3 बार मैंने रिपीट किया बड़ी वाली स्लाइड में जो हाउ डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीसी में कस्टमर रिक्वायरमेंट भूल गए सब दौड़ के अपने सामने चाय बनाने लगे ब्लैक टी ग्रीन टी है ना ब्लू टी भी है हमारे पास हो गया बाहर के लोग और कुछ तो बना देगा एडेड फ्लेवर किसी ने बोला था मसाला टी है ना विद और कुछ एडेड बोला मैंने बोला जैसे लौंग इलायची लॉन्ग इलायची मेरे को लगाया था लॉन्ग दा भी था एंड मेथड बनाने का तरीका मशीन से बनाएंगे कि वो लकड़ी वाले चूल्हे में करके मिट्टी के तेल में स्टोव करते हैं ये किस तरीके से बनेगी स्वीटनेस क्या होगी सबने बोला कि कितने टेम्परेचर की भी बात है कि बॉइलिंग की बात है टाइम पर टेक्निक की भी बात है कि कितनी देर तक पानी गर्म करने के बाद में पत्ती डाल दी किसी ने डाल दी टाइम और होल प्रोसेस पूरी चाय बनाने में कितना समय लगेगा मशीन की बात कर लेते हैं तो मशीन से बनेगी कंडीशन मेथड दोनों रिपीट हो जाएगी कि मेथड और मशीन दोनों में एप्लीकेबल होगा वेसल्स की बात करें कि पीछे आप पीतल के बर्तन में बनेगी स्टील के बर्तन में बनेगी एल्यूमिनियम के बर्तन में बनेगी हीटिंग अप्लायंसेस क्या होगा एक कैलिब्रेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जब पहली बार चाय बनानी सीखी होगी तो घर में मम्मी जैसे कि सब को आपको देख के सीखना है यस सर खाना बनाने का ऐसे प्रोजेक्ट में भी हम दूसरों को देख के सीखते हैं एक्टिविटी हम कैसे सीखते हैं मॉनिटर करते हैं आप में से कुछ लोग प्रोफेसर बनना चाहते होगा तो आपका भी कोई ना कोई प्रोफेसर यहाँ पर आइडल होगा आप देखते हो मैम ये सब किस तरीके से आते हैं यहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं तो आप मॉनिटर करते हो मॉनिटर करके फिर आप उनको फॉलो करते हो ना अब उन्होंने बोला था 4 चम्मच चीनी डालनी है लेकिन अपन भूल गए और चम्मच कौन सी वाली नहीं 1 स्पून दी की टेबल स्पून दी है ना दाल बनाई ना सबने पहली बार जिंदगी में तो बोला गया हुआ इतनी कटोरी दाल में इतना कटोरी पानी पहली बार गारंटी से कह रहा हूँ या तो पानी कम पड़ गया हो या पानी ज़्यादा पड़ गया हो दाल बनती होती होगी या बड़ी होती होगी वो कैलकुलेशन नहीं मिला है और कितनी देर गर्म किया उसका मिल जाए फिर आता है मटेरियल ब्रांड पी बैग्स पी लीव्स बात की आपको बोले थे ब्लैक ग्रीन येलो व्हाइट हर्बल कौन है ग्रीन अवेलेबल है शुगर की बात करें किसी ने कितनी मीठी चीनी है जैसे पाकिस्तान की चीनी इंडिया की चीनी से ज़्यादा मीठी है बेशक दो मीठी ना हो पानी का क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ता है यहाँ
आपकी कमाल की बात नहीं, वो आपको गोरखपुर बना लो, वो उस तरीके से बनाई नहीं पाएगी क्यों खाने लगे हैं। पानी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मिल्क, गाय का दूध, बकरी का दूध, है ना, अमूल का दूध, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, स्टोरेज, एक्सपायरी, सेल्फ लाइफ। कॉफी में बहुत होता है, कॉफी को खोलना छोड़ दो तो उसकी खुशबू जो है अरोमा तैयार हो जाती है, चाय की पत्ती में खुशबू हो जाती है, चीनी के साथ में चीटियां चली जाती है। हो सकता है कि चीनी की वजह से केस अच्छा हो। मैनपावर प्लेज वेरी बिग रोल। बहुत कम बोला इसके बारे में आपको है, बोला लेकिन बहुत कम। थैंक यू मनी ये बनाने का कारण के आपने बोला कि आप घर गए यहाँ से प्रकार के हस्बैंड ने बोला चाय चाहिए, वो चाय का टेस्ट ऐसा होगा जिंदगी में अगली बार मांगेगा नहीं यहाँ से थका के कहते और मन बहुत अच्छा है। आप तो चाय की दुकान में जाओगे उसको प्रयास होगा भैया को बढ़िया नहीं चाय पिला दिया कभी कभी देखो बहुत अच्छा चाय पी आप उसको डांटो वो ऐसी चाय बना के देगा ना, वो पुरानी वाली पत्ती उन्होंने बोला ना एक ही पत्ती को बार बार गर्म करके देता है तो वैसी वाली चाय पीएगी आपको। इसके यूज आदमी ने चाय बनाने का सीखने के लिए उसको नॉलेज के लिए चाय बनानी है। हम जस्ट बाइंडिंग मूड हैप्पीनेस सब अच्छे से बनानी, लेकिन चाय यहाँ पे लटक रही है, हैप्पीनेस गंदा है, कब टूटा हुआ है साइड से, आपको अच्छी लगेगी नहीं, पीने को मजा आएगा ही नहीं। एक सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्टिंग। आप लोगों ने कितने को चाय बनाई है मैक्सिमम अभी तक? 5 लोग आपने 10 लोगों की चाय बताई है, 50 लोगों की चाय बतानी पड़ेगी, आपके सारे ये सब फेल हो जाएंगे। 10 लोग हो गए ना, तो आप क्या करते हो ईमानदारी से बता सीधे करने के बाद से लेकर के ज्यादा बाकी आदमियों की तो देखो कलर क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड नथिंग इट इज टेस्टिंग। तो आपको क्या करना है बिफोर द प्रोसेस आपको टेस्टिंग करनी है कि कैसा है पानी कैसा है, मेरी चाय की तो नहीं है, चीनी में मिठास कितनी है, चीनी में मिठास कितनी है, नेक्स्ट टाइम अपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन तब उसका ध्यान रखने की थोड़ा सा टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस में मैंने बैंक को बोला कि कलर कैसा है, चक्कर में लिखा हुआ टेस्ट कैसा है, बड़ा तो बोला दाल बना दो सब्जी बना दो, जिस दिन आपको खास होता हुआ करवा सकते हो उस दिन हस्बैंड को बोलते होगे आप टेस्ट करके बताओ कि सब्जी कैसी बनी है, मेरे घर तो होता है जब मैं टेस्ट में बनता हूँ मैं भी कैसे करवा करता हूँ कलर देखते हो टेस्ट देखते हो, पोस्ट प्रोसेस जब बन जाती है तो आप देखो उसका एरोमा कैसा है, खुशबू कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, कलर कैसा नहीं है, तो फिर आप फिक्र करोगे मिर्ची डाला होगा तो पानी डाल दे, नमक डाला होगा तो पानी डाल दे, कम ना तो फिर आप ऐड करते हो। अगर मैं इन सारी चीजों को इंश्योर करूंगा तो एनवायरनमेंट माहौल कैसा है, माहौल बना हुआ है, गर्मी का टाइम है पसीना टपक रहा है, चाय तो मजा ही नहीं आएगा, ठंडी का टाइम है बारिश हो रही है और चाय के साथ में पकौड़े मिलते हैं तो चाय थोड़ी सी टेस्टी चाय होती है, चाय बहुत मस्त लगती है। देखो जिसने बोला था मैं चाय नहीं पीती हूँ वो भी हंसता है, फिर दूसरे क्या निकलेगा तो सेम थिंग कंप्यूटर में प्रोसेसेस, अगर मैं प्रोसेसेस को मैं किस तरीके से कंट्रोल करूँ तो मेरा प्रोसेस सेम सिमिलर होगा, काफी हद तक सिमिलर होगा। तो जितने भी चेंज है, जितने भी ब्रांड है, ये कोशिश करते हैं कि अपनी प्रोसेसेस को इस तरीके से कंट्रोल करें। विद दिस माइंड विजुअल प्रेजेंटेशन पार्ट इज ओवर। ईमानदारी से 2 घंटे चाहिए होते हैं, अभी 12 बजे आपका दूसरा सेशन है, कैसे करोगे? हो जाएगा मैं टेक्निकल अभी भी मैंने या पावर के और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, मैं आपके घर से रुकता हूँ, आपका लंच ब्रेक होगा क्योंकि आपने जैसे 12 बजे आना मैंडेटरी नहीं रहेगा। किसी का कोई सवाल है तो क्लियर करो, लेट हो गए उसके ये समझ में आ गया। अरे चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे कोई सवाल नहीं, भूख लग गई है चलो सब कर लिया तो जाओ। थैंक यू वेरी मच।
start.